Welcome back to another lecture. Frobinius method. Frobinius method is a type of power series method when x equal to 0 be the regular singular point of the standard ordinary differential equation p naught y double dash plus p1 y dash plus p2y equals to 0. Here x equal to 0 be the regular singular point या regular singularity. This is most important to note that the leading coefficient where p naught is equal to 0 at x equal to 0. So therefore this becomes the regular singularity for this ordinary differential equation. Here is a method in Frobinius. First of all, we assume a solution y in the form of x raised to power m a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on, or it can be written as a naught x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 plus so on. This is the solution for this ordinary differential equation when x equal to 0 be the regular singularity. Second step. First step is we assume solution. Second step is substituting y dash, y double dash and y in the given equation, then we equate like powers of x. Here is substitution of y dash, y double dash and y. Third step is equate to 0. We can write equate to 0 the lowest degree term in x. It gives a quadratic equation known as indicial equation. We can write it is known as indicial equation. indicial equation, इसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहेंगे. सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर्स है एक्स की उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो वहाँ से इंडिशियल इक्वेशन निकलेगी. नंबर 4, इक्वेटिंग द अदर हायर टर्म्स of x and calculating the values of a naught, a1, not a naught आपके पास यहीं निकल जाएगा इंडिशियल में, a1, a2, a3 up to so on in terms of a naught की टर्म्स में हम सारा निकालेंगे. तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है द कंप्लीट solution depend upon the roots of the indicial equation, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. It gives two roots. The complete solution depend upon the roots of the indicial equation. अब यहाँ से केसेस बनने शुरू हो जाएंगे. हम स्टडी अब यहाँ से केस नंबर 1 स्टडी करेंगे. व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डोंट डिफर बाय एन इंटीजर. व्हेन रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. अब यहाँ से केसेस बना देते हैं.
case number 1, let m1 is not equal to m2. m1 and m2 are two roots of this initial equation. Then the complete solution y becomes c1 y m1 plus c2 y m2, where यहाँ पे लिख सकते हैं हम where m1 m2 be the roots of this quadratic equation, that is initial equation. Question based upon case 1. Solve in series the equation 9x 1 minus x y double dash minus 12y dash plus 4y equal to 0. Solution. First of all, we compare this equation with the standard form. What is standard form? Standard form is p naught y double dash plus p1 y dash plus p2 y equals to 0. आपको साफ दिख रहा है p naught equal to 9x 1 minus x. We can write p naught of x 9x 1 minus x. p1 is minus 12, p2 is 4. तो hence at x equal to 0, अगर हम x को 0 रखते हैं, this implies p naught at 0 equal to 0, right hand side this is 0. तो hence x equal to 0 be the singular point. And it may be, and this becomes a regular singular point when this form is Frobinius method is applicable. इस टाइप से हम Frobinius method को applicable करेंगे. तो Frobinius method के accordingly we assume, according to Frobinius method, we assume solution y equal to a naught x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 plus up to so on. So therefore y dash dy by dx equal to m a naught x raised to power m minus 1 plus m plus 1 times a1 x raised to power m plus m plus 2 a2 x raised to power m plus 1, जैसे जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस अप टू सो ऑन, एंड y डबल डैश इक्वल टू, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, m इंटू m माइनस 1 a naught x raised to power m minus 2 प्लस यहाँ से पहले आ जाएगा m इंटू m प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या m को बाद में लिख सकते हैं, a1 x raised to power m minus 1 प्लस m plus 2 m plus 1 a2 x raised to power m प्लस अप टू सो ऑन. y डबल डैश भी मिल गया, y डैश भी मिल गया, y भी मिल गया. अब गिवन इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर वी गेट 9x 1 minus x m times m minus 1 a naught x raised to power m minus 2 plus m plus 1 m times a1 x raised to power m minus 1 plus m plus 2 m plus 1 a2 x raised to power m प्लस अप टू सोन. कुछ नहीं किया है, y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से एज इट इज़ यहाँ लिख ली. इसी प्रकार -12 टाइम्स है,
we can write here minus 12 times m times a नॉट एक्स रेज टू पावर m माइनस वन, बिल्कुल देख के वैसे लिखना है, m प्लस वन a वन एक्स रेज टू पावर m प्लस m प्लस टू a टू एक्स रेज टू पावर m प्लस वन प्लस अप टू सोन, अब आखिर में प्लस 4 टाइम्स है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 टाइम्स ऑफ y a नॉट एक्स रेज टू पावर m प्लस a1 x रेज टू पावर m प्लस वन प्लस a2 x रेज टू पावर m प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन, दिस शुड बी 0, राइट हैंड साइड में 0 है। अब हमने यहाँ पे x की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे अगर देखें हम x की स्मॉलेस्ट पावर, तो x की स्मॉलेस्ट पावर आई थिंक यहाँ पर x रेज टू पावर m माइनस वन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है इसका, माइनस 12 m a नॉट। अब यहाँ से भी निकालेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा यहाँ पर, और ये m माइनस वन बना देगा, तो एक आपके पास टर्म्स आई 9m m माइनस वन a नॉट, और कहाँ से आ सकती है m माइनस वन, कहीं से नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इंडिशियल इक्वेशन मिलने वाली है। तो देयरफॉर द लोवेस्ट पावर, वी कैन राइट द लोवेस्ट power of x is x raised to power m minus वन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। ये क्लियर हो गया तो उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इट्स कोफिशिएंट इक्वेटेड टू 0, तो इट्स कोफिशिएंट हमने अभी भी देखे क्या क्या कोफिशिएंट है इसके, a नॉट 9m टाइम्स m माइनस वन माइनस 12m, ये है इसके, यहाँ से भी निकाल दिया हमने और यहाँ से भी निकाल दिया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, m स्क्वायर माइनस m 9 टाइम्स माइनस 12m, थोड़ा सा सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ m, तो दैट इज m टाइम्स 3m माइनस 7 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0 एज a नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट को तो 0 नहीं कर सकते हम, दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 0 7/3। इनकी बात होती है, दीज आर टू रूट्स, m इक्वल टू 0 एंड 7/3। अब यहाँ पे m ये आ गया, इसको मान सकते हैं m1 इक्वल्स टू 0, अदर रूट्स m2 इक्वल्स टू 7/3। दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है, केस वन इज एप्लीकेबल, बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो जब डिस्टिंक्ट रूट्स है तो हम फिर अगली पावर्स x रेज टू पावर m माइनस वन के बाद की पावर्स, दैट इज x रेज टू पावर m, वो भी हम कंपेयर करेंगे यहाँ से देख के। x रेज टू पावर m यहाँ पर भी है, यहाँ भी आ जाएगा जब x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ध्यान से x रेज टू पावर m, और देखना पड़ेगा यहाँ भी आएगा। तो ये सारी लाइक पावर्स को हम फिर से 0 कर लेंगे। कैन राइट हियर the coefficient of x raised to power m equated to 0, we get a1 times 9m plus 1 times m minus 12 times m plus 1 plus a naught times 4 minus 9m times m minus 1 equals to 0। आपने चेक करना है एग्जैक्टली ये मिलेगा हमें, वी विल गेट दिस। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, 3 टाइम्स a1 3m minus 4m plus 1 minus a naught 3m minus 4 3m plus 1 equals to 0। a1 भी आ गया, a नॉट भी आ गया। थोड़ा सा और सिंपल किया, यहाँ पे देख सकते हैं हम
3m-4, 3m-4 फिर से कॉमन है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3a1 m+1, और इसको हम इक्वल कर सकते हैं राइट हैंड साइड में a0 3m+1, वी विल गेट दिस। तो सिमिलरली यहाँ से हम जज करेंगे आगे, अगला जो कोएफिशिएंट होगा x रेज़ टू पावर, इससे अगला x रेज़ टू पावर m+1, उससे सॉल्व करके हमें मिलेगा 3a2 m+2 इक्वल्स टू a1 3m+4, और उससे अगला क्या मिलेगा 3a3 m+3 इक्वल टू a2 टाइम्स 5m+7, सो ऑन। इस टाइप से चलते रहेंगे आगे। दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, इस फॉर्म में लाया तो बाकी क्लियर है। एक अगर हम स्टेप आगे भी करें तो एग्जैक्टली इस फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है, a1 का a2 बन जाता है यहाँ पर, m+1 का m+2, क्योंकि एक पावर आगे हैं, तो इसको नोट करना पड़ेगा। नोट इट केयरफुली दिस स्टेप, सो ऑन इस टाइप से आगे। तो देयरफॉर a1 यहाँ से निकालेंगे हम a1 इक्वल टू 3m+1 अपॉन 3 टाइम्स m+1, a0 की फॉर्म में आ गया। फ्रॉबिनियस मेथड के अंदर हमने जब थोड़ा सा डिस्कशन किया मेथड में क्या क्या स्टेप्स है, तो वहाँ पे क्लियर था कि यू कैन equating the other higher terms of x and calculating the values of a1, a2, a3 up to so on in terms of a0. In terms of a0, a1 is this. Similarly, यहाँ से a2 निकालेंगे, a2 इक्वल टू 3m+4 अपॉन m+2 3 टाइम्स, और यहाँ पर आपके पास a1 है, a1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आगे। 3m+4 और आगे बन जाएगा 3m+1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ भी है 3, 3 3 9, वी कैन राइट 3 स्क्वायर m+2 m+1 a0। इसी प्रकार a3 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a2, a2 की वैल्यू फिर से पुट कर लेंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट वैल्यू ऑफ a3 इज इक्वल्स टू 3m+7 3m+4 3m+1 3 raised to power 3 m+3 m+2 m+1 a0 etc. तो when m equals to 0, that is m1, हमने इसको m1 माना है, m1 equals to 0, तो what is a1, यहाँ से फिर हमारे पास this becomes m1, root is this, तो इसको हम m ही मान लेते हैं, m equals to 0, तो यहाँ पे 0 रखा, that is 0 here, 1/3 times a0, 1/3 times a0 आ गया। सिमिलरली a2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, दिस इज इक्वल्स टू 1 × 4/3 × 6 a0, a3 की वैल्यू ये ऐसे आ जाएगी 1 × 4 × 7/3 × 6 × 9 a0 etc. गिविंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, गिविंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देयरफॉर y1, फर्स्ट y1 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रूट m1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल्स टू a0 कॉमन 1 + 1/3x प्लस 1 × 4/3 × 6 x² प्लस 1 × 4 × 7/3 × 6 × 9 x³ प्लस अप टू सो, ये y1 आ गया।
और y1 को हमने पहले लिखा है y, दैट इज फर्स्ट y1 दैट इज c1 y एट m1 हमारे पास ये है। ऐड करना है इनको सबको, ये हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि इसको सिंपली फ्रॉम y1 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज y1 दैट इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो, इस टाइप से ये सॉल्यूशन मिला। Similarly, when root is 7/3, we get particular integral y2 इसी तरह से आएगा y2 a0 टाइम्स, यहाँ पे y1 इक्वल टू a0 टाइम्स ये कैसे आएगा, बिकॉज सॉल्यूशन इज x रेज टू पावर m टाइम्स दिस, m की वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन आपके पास ये मिलेगा। सिमिलरली व्हेन m इक्वल टू 7/3, तो यहाँ पर a0 x रेज टू पावर 7/3 करना पड़ेगा, और इनसाइड आपके पास आएगा 1 प्लस 8/10x प्लस 8 इंटू 11/10 इंटू 13 x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 11 इंटू 14/10 इंटू 13 इंटू 16 x क्यूब प्लस अप टू सो। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन CS, इस केस में क्या मिलता है, C1 y1 प्लस C2 y2, दिस इज द आंसर। C1 y1 कर लेना, C1 आपके पास कांस्टेंट है, y1 इज दिस, C2 टाइम्स y2। तो इसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व किया, फिर से यहाँ पे वैल्यूज को पुट की एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। अब फ्रॉबिनियस मेथड के अंदर इफ रूट्स आर इक्वल, अब यहाँ पे केस नंबर 2, फर्स्ट केस में तो रूट्स डिस्टिंक्ट थे, वी डिस्कस हियर केस नंबर 2 व्हेन इंडिशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स इक्वल, दैट इज m1 इक्वल टू m2। तो वहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू c1y एट m1 प्लस c2 करली y बाय करली m टाइम्स m1 बिकॉज m1 इक्वल टू m2। ये आपके पास केस नंबर 2 है जब रूट्स इक्वल है फ्रॉबिनियस मेथड के अंदर। बाकी एग्जैक्टली होल प्रोसेस इज सेम। Question based upon case 2 when roots of the initial equation is same. Solve in series x y double dash plus y dash plus x y equal to 0. Similarly इसको भी कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू x निकली, p0 की वैल्यू x निकली, p1 की वैल्यू आपके पास 1 है, p2 की वैल्यू x है। तो therefore on comparing p0 at x equals to x, p1 of x equals to 1, p2 of x equals to x। अब यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू 0 दिस बिकम्स होल 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट, फ्रॉबिनियस मेथड इज एप्लीकेबल। तो इस टाइप से हम एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन इज y, जो हमने पीछे किया था सॉल्यूशन, एग्जैक्टली दिस बिकम्स द सॉल्यूशन, a0 x रेज टू पावर m प्लस a1 x रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर m प्लस 2 प्लस अप टू सोन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ से y डैश में निकालेंगे जैसे पीछे निकाला, और y डबल डैश में निकाला, y डबल डैश y डैश y, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड गेटिंग द इंडिशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इंडिशियल इक्वेशन आएगी, इन दिस केस आई राइट हियर a0 टाइम्स m इंटू m माइनस 1 प्लस m इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज m स्क्वेयर माइनस m प्लस m इक्वल्स टू 0, बिकॉज a0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं होगा, ये कैंसल आउट, m स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, दिस बिकम्स m इक्वल्स टू 0, 0, दोनों 0 आ गए।
इट मीन्स बोथ आर इक्वल। केस 2 इज एप्लीकेबल। अब एप्लीकेबल है तो अब हायर कोफिशिएंट्स को हम जीरो करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेटिंग कोफिशिएंट x रेज टू पावर m इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a1 टाइम्स m प्लस 1 m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज यहां से जब सॉल्व करेंगे m की वैल्यू तो 0 है, a1 इक्वल टू 0 आ गया, a1 की वैल्यू यहां से 0 आ गई। सिमिलरली हायर अदर कोफिशिएंट्स को 0 करने पे हमें अदर वैल्यूज आएगी, a1 की वैल्यू 0 आ गई। हायर कोफिशिएंट्स, इससे जो अगला कोफिशिएंट होगा दैट इज x रेज टू पावर m प्लस 1। x रेज टू पावर m प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को 0 करने पे वी विल गेट a2 m प्लस 2 स्क्वायर प्लस a0 इक्वल्स टू 0। उससे अगले में करने में x रेज टू पावर m प्लस 2 में किया, क्या मिलेगा, दैट इज a3 m प्लस 3 स्क्वायर प्लस a1 इक्वल्स टू 0, सो ऑन। इस टाइप से हमें वैल्यूज मिलेगी। एंड फाइनली a1 a3 a5 ये सारे जीरोज होंगे। तो देयरफॉर we get y a0 x रेज टू पावर m ये सारी वैल्यूज को पुट करके वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस 4 का स्क्वायर। एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे पीछे किया है। यहाँ पे माइनस भी रहेगा प्लस भी रहेगा, माइनस x रेज टू पावर 6 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस 4 का स्क्वायर m प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये रहेगा y। अब यहाँ पे x की m की वैल्यू 0 रखनी है, तो दिस बिकम्स 1। तो वी विल गेट, यहाँ पे देखो m की वैल्यू 0 आएगी, तो हमारे पास एक सिंपल ऑर्डर की सीरीज आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम आगे कर सकते हैं। वी गेट ऑन पुटिंग m इक्वल्स टू 0 y1 फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज a0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस x4 बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस x6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो। दिस गिव्स सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ 2। अब अगला भी m इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी वही आएगा। टू गेट द सेकेंड सॉल्यूशन वी कैन राइट हियर, टू गेट द सेकेंड सॉल्यूशन वी डिफरेंशिएट y पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m। जो हमारे पास y था ऊपर उसको हम y इज हियर, y हमारे पास m की टर्म्स में ही है। इसको डिफरेंशिएट करने पे वी विल गेट y log x प्लस a0 x रेज टू पावर m x स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू m प्लस 2, इसको थोड़ा लिखा इस टाइप से, माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2 अपॉन m प्लस 2 प्लस 2 अपॉन m प्लस 4 प्लस so on. So therefore y2 the second solution is curly y by curly m at m equals to 0। यहाँ पे 0 रखते हैं फिर से, तो we will get y1 log of x plus a0 1 upon 2 square
x square minus 1 upon 2 square into 4 square, 1 plus 1 by 2 x raised to power 4 plus so on. So hence the complete solution is y, that is c1 y1 plus c2 y2. y2 is this. तो अगर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना भी हो तो वी कैन राइट y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 log x. ये सारा अलग कर सकते हैं हम. यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 square 4 square into 6 raised to power 2 x raised to power 6 plus up to so on plus c2 times 1 upon 2 square ये सारा x square minus 1 upon 2 square into 4 square 1 plus 1 upon 2 x raised to power 4. अगर एक टर्म्स और भी लिखनी पड़े आगे तो टर्म्स भी हम लिख सकते हैं. That is plus of 1 upon 2 square into 4 square into 6 square 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 times x raised to power 6 minus up to so on. यहाँ पे हम कर सकते हैं where c1 is a naught c1 कैपिटल माना ही, that is capital c2 is equals to a naught small c2. दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन. इस टाइप से हम फ्रॉबिनियस मेथड से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. यू कैन ट्राई 1 or more क्वेश्चंस एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. थैंक यू वेरी मच.